بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں مجاز حسین شاہ صاحب، جو سپورٹس آرگنائزر ہیں، جن کی ساری زندگی سپورٹس کی پروموشن کے لیے وقف ہے۔ یہ نیشنل ایتھلیٹ بھی رہے ہیں اور سپورٹس کے حوالے سے ان کی بہت ساری سرگرمیاں جو اچیومنٹس ہیں وہ قابل دید ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے صاحب آپ کی سپورٹس کے جو اچیومنٹس ہیں، سپورٹس کے حوالے سے آپ کی جو سرگرمیاں ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں بالخصوص فیصل آباد میں سپورٹس پروموٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگ سپورٹس کے حوالے سے یا ادارے سپورٹس کے حوالے سے اتنے جو کانشیس کیوں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ندیم صاحب اور اشفاق مغل صاحب جو کہ GS نیوز کے انچارج ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سپورٹس ایک شعبہ ہے پاکستان میں، مجھے بلایا ناچیز کو۔ تو فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں گے کہ فیصل آباد میں سپورٹس میں بہت ایسے کھلاڑی ہیں جن کو وہ چیزیں نہیں ملتی جس سے وہ سپورٹس مین آگے آ سکے۔ اس میں فقدان ہے۔ فیصل آباد میں ایک جنرل سٹیڈیم ہونا چاہیے جس میں تمام گیمیں، جیسے اسلام آباد میں ہے، فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، تو اس میں نہ کوئی ایسا سٹیڈیم ہے جہاں پنجاب سپورٹس کروائی جائے، پنجاب گیم کروائی جائے یا نیشنل گیم کروائی جائے، یا ایسا ٹریک نہیں ہے جس میں ہاکی، فٹ بال اور بیٹھنے کے لیے جگہ ہو۔ لیکن پھر بھی جیسے اور تیسے کام چل رہا ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا نہ ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی 2-3 مثلا اقبال سٹیڈیم ہے، ہاکی سٹیڈیم، اور اس کے علاوہ ٹریک بھی بچ چکا ہے فیصل آباد جنگ روڈ پر، لیکن اس کی بھی خستہ حالت ہے۔ تو کھلاڑیوں کو چاہیے کہ اس دور میں اگر ہم سپورٹس کی طرف کھلاڑیوں کو لے کر آتے ہیں یا پبلک کو لے کر آتے ہیں، یہ آج کے دور میں ایک بڑی عبادت ہے، تو اس میں جب تک ہماری انتظامیہ کو صحیح حقائق نہیں بتائے جائیں گے، DC صاحب کو، کمشنر صاحب کو، تو اس وقت تک سپورٹس صحیح نہیں ہو سکتی۔ سپورٹس کے جو ادارے ہیں ماشاءاللہ اس میں جو آفیسر لگے ہوئے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنا اس اداروں میں یہ بتائیں کہ سپورٹس کے ادارے ہیں، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہے، تحصیل سپورٹس آفیسر ہیں، یہ دیگر جو ادارے ہیں، کیا وہ اپنا رول پرفارم کر رہے ہیں؟ اپنا پرفارمنس ان کی جو ہے، جو پرفارمنس ہے، وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ہمارے جو ڈویژن سپورٹس آفیسر ہیں، پھر ڈسٹرکٹ، پھر تحصیل، پھر ضلع، یہ جتنے سپورٹس آفیسر ہیں ان کو لگایا ہی سپورٹس کے لیے گیا ہے کہ کھلاڑیوں کی لسٹ بنائیں، کھلاڑیوں کے ساتھ وہ پنجاب سپورٹس بورڈ ان کو جو شیڈول دیتا ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ پھر باقی ایسوسیشنیں ہوتی ہیں جو سپورٹس کو آرگنائز کرتی، لیکن ہر سال رات سے ایسوسیشن کو نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارے ون مین شو چل رہا ہے، دیکھیں کہ بدقسمتی میں کسی کے خلاف نہیں کہنا چاہتا، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اب فیصل آباد کا ایتھلیٹک ٹریک ہے، میرا کیونکہ ایتھلیٹک سے تعلق ہے، اس ایتھلیٹک ٹریک کو نہ تو پاکستان سپورٹس بورڈ نے قبول کیا ہے، نہ پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن نے قبول کیا ہے، نہ ڈویژن نے، لیکن وہ ٹریک ختم ہو رہا ہے۔ اس کے اندر جو بچے ٹریننگ کرتے ہیں ان سے میرا خیال ہے کہ اگر کمشنر صاحب کے نوٹس میں ہو، وہ کھلاڑی جو فیصل آباد کا نام روشن کرتے ہیں، ان سے 2000 سے 2500 روپیہ ان کلبوں سے فیس لی جاتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کے جو انتظامات ہیں وہ وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایسوسیشن ہے ان کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے ڈسٹرکٹ سپورٹس کمیٹی کے ساتھ، DC صاحب کے ساتھ، کہ ان کو وہاں کوئی نہ کوئی چیز دی جائے یا کمرہ دیا جائے کہ وہ وہاں ٹھہریں، اور وہاں ویٹ ٹریننگ کے لیے سامان، کھلاڑیوں کی کٹ رکھنے کے لیے وہ کوئی انتظام نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس جہاں آفس ہیں وہاں ہمارے آفیسروں کے لیے وہ تعینات کر دیا گیا ہے کہ وہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پہلے تو وہ سپورٹس کا آفس ہے، اس میں سپورٹس کے کام ہونے چاہیے۔ شاید یہ بتائیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں، بالخصوص اسکول ہے، ہائی اسکول ہیں، کوئی کالجز ہیں، ہمارا دور تھا، ایک دور تھا کہ یہاں اسکولوں میں آپس کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ وہاں پہ وہ سپورٹس بالکل غائب ہو گئی ہے، اسی کی وجہ پہ کیسے اسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ سر اس میں سپورٹس سے آپ کی سجیشن کیا ہے؟ آپ متعلقہ اداروں کو یا کمشنر کو کوئی سجیشن دیں کہ یہ بحال ہو؟ سر بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کے جو CEO صاحبان لگے ہوئے ہیں، یا تو انہوں نے سپورٹس کھیلی نہیں ہے، یا کھیلی ہے تو وہ توجہ نہیں دے رہے، یا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں فیصل آباد میں ایک ہی ادارہ ہے، وہ DPS اسکول اینڈ کالج ہے، یہاں کمشنر صاحب کی ہدایت پر وہ مقابلے، ہاکی کے انٹر کالج مقابلے، انٹر سکول مقابلے کروائے ہیں جشن آزادی کے سلسلے میں۔ یہاں فیصل آباد کی 6-7 ٹیمیں جو بہترین ٹیمیں تھیں، ان کو ہر طرح کی کمشنر صاحب
की तरफ से और प्रिंसिपल शाहिद महमूद की तरफ से हर सहूलतें और बहुत अच्छा अरेंज किया गया। और इसके अलावा डीपीएस स्कूल एंड कॉलेज में खिलाड़ियों को फ्री दाखिला दिया जाता है, और मैं कहता हूं कि ये एक जन्नत, बहुत बड़ी बात है। ये डीपीएस कोर्स में याद है, जैसे इसकी स्पोर्ट्स के वजह से बहुत सारी खिदमात हैं, इससे निकले हुए बच्चे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो मेरे ख्याल में कोई नेशनल टीम में बच्चा गया था इस पास में। ये जैसे कमिश्नर साहब की ज़ेरे साया डीपीएस में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, वो कमिश्नर जैसे दूसरे स्कूलों तरीम इदारों में स्पोर्ट्स को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? ये देखिए, ये अभी मेरा ख्याल इंशाल्लाह हमारी बात जाएगी, शायद जो आला हुकाम है, जो आला अफसर है हमारे फैसलाबाद की इंतजामिया है, उन तक ये बात ही नहीं पहुंचाते। अब देख लें कि पहले सबसे बुनियादी स्पोर्ट्समैन के लिए ये है कि इंटर स्कूल मुकाबले वो सीओ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट में करवाने होते हैं, और पहले हम भी इसकी पैदावार, मैं मुसलमान स्कूल से मैट्रिक की और यहाँ मैं पढ़ा, और यहाँ मैं स्कूलों के मुकाबले जीते थे, तो मुझे वो आज भी खुशी नहीं भूल रही कि इतना कंपटीशन होना, स्कूलों में तैयारी करके आना। लेकिन अब वो चीज, इसकी जिम्मेदार मैं कहूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इसमें सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को और सेक्रेटरी एजुकेशन को अपने सिर्फ ऐसे ही हैं कि स्कूलों को सिर्फ इन्होंने कमेटियां बनाई थी, अब स्कूलों में वो भी कागजों में रह गई हैं, फाइलों में पड़ी हुई हैं, कोई स्कूल कंपटीशन कर रहा। फिर उनकी एक डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती थी जो इंटर स्कूल मुकाबले में हिस्सा लेती थी, फिर वो टीम के खिलाड़ी फैसलाबाद बोर्ड, पहले सरगोदा बोर्ड था, उसमें जाके इंटर स्कूल मुकाबले होते थे, फिर उसमें खिलाड़ी जीतते थे, फिर वो पंजाब में जाते थे। अब वो सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन फंड लेना और पैसा उसी तरह लिया जा रहा है बच्चों से, लेकिन बच्चों पर जब तक खर्च नहीं होगा। मैं कहता हूं कि अब पाकिस्तान में अरशद नदीम है जिसने वर्ल्ड में सिल्वर मेडल लिया है एथलेटिक्स में, दुनिया में ये एक ख्वाब है, सोच है कि पाकिस्तान इतने जदीद मुल्कों के साथ मुकाबला करके एक सिल्वर मेडल लेना। उसने सारी गेमों को अपने पैरों के नीचे छुपा लिया है, और उसकी ट्रेनिंग देखें, और जो साथ हमारा मुल्क है इंडिया, उसके खिलाड़ी की ट्रेनिंग देखेंगे, वो सारा जितनी उसने ट्रेनिंग करनी वो यूरोप में करता है। ये बच्चा अपने पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग करता रहा, और एक गांव का रहने वाला है, एक बंदे को जदीद ट्रेनिंग मिल रही है, एक बंदा पत्थरों से ट्रेनिंग कर रहा है, एक बंदा कंप्यूटराइज ट्रेनिंग कर रहा है, उसका और इसका बड़ा फर्क है। हाँ जी, और फैसलाबाद जो है कि इस वक्त फैसलाबाद में 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं और एक इकबाल स्टेडियम है, और पता नहीं कि स्पोर्ट्समैन बेचारे ऐसे फिरने हैं जैसे उन्हें कोई बेलदारी लगा दे, लेकिन वहां उन लोगों की इजारादारी है। आपसे, आपकी बातों से मुझे एक चीज ये समझ आई है कि फंड्स की कमी नहीं है, फंड्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो फंड्स आ रहे हैं, फंड वो स्पोर्ट्स पे वो लग नहीं रहे। इसकी जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया जिम्मेदार है, स्पोर्ट्स के अदारे जिम्मेदार हैं, ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिम्मेदार है? देखो, स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है उनके तो पास कुछ नहीं है, जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं ठहराऊंगा। ये होता है मोहब्बत और अपना एक जज्बा होता है जो मुकाबले करवाने में अहम रोल अदा करता है। उसमें प्राइवेट लोगों को शौक है, कोई कबड्डी का टूर्नामेंट करवा रहा है, कोई फुटबॉल का करा रहा है, हालांकि उनका ये तल्लक नहीं है। ये एक शेड्यूल आता है फैसलाबाद को, हम फैसलाबाद सतह पर एक बड़ा, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक बड़े स्टेडियम की जरूरत है जिसमें एथलेटिक ट्रैक हो, वेट लिफ्टिंग हो, स्विमिंग पूल हो, फुटबॉल की ग्राउंड हो, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम कह रहे हैं आप। स्पोर्ट्स। और मेरा ख्याल है कि मैं कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करता हूं और डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो डिवीजन में वो फैसलाबाद ये एक किसी फर्म के जुम्मे लगा दें कि आपने ये स्टेडियम बनाना है। अब सारा जोर है कि स्कूलों के फंक्शन जो है डीपीएस अपना इकबाल स्टेडियम में होते हैं, प्राइवेट स्कूल जितने हैं वो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करा के लोगों से लाखों रुपए। आपने अच्छी बात की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को आप अगर कोई जिम्मेदारी लगा दें किसी फर्म को, किसी बड़ी इंटरलोप और इस तरह की दूसरी फर्मों को, वो आपको प्राइवेट जिम्नेजियम बहुत बड़ा स्टेडियम बना के दे सकता है जी। तो इस वजह से वो कमिश्नर साहब या सेक्रेटरी एजुकेशन या चीफ मिनिस्टर वो इनिशिएटिव ले, किसी भी फर्मों को या चैम्बर को कह दे हमें स्टेडियम चाहिए, तो वो मेरे ख्याल फंड इतने दे सकते हैं कि फैसलाबाद में स्टेडियम बन सकता है। सर बहुत जरूरी है, इस वक्त जरूरत है। अगर ये स्पोर्ट्स की तरफ हमने तवज्जो ना दी तो जो एजुकेशन अदारों में काम हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं मिलती। हर वालिदैन ये कहता है कि मेरा बच्चा पढ़े 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 पढ़े, और बोर्ड में 3 पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाकी बच्चे भी नंबर लेते हैं, लेकिन
पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। मेरा एक दिली इरादा है, मैं काफी अरसे से स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी हूँ, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर भी हूँ, खिलाड़ियों को तैयार भी करता हूँ। एक हमारा अदारा है, उसमें मुझे अल्लाह की रहमत से मेरे स्पोर्ट्स एथलेटिक का मैं वहाँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्पोर्ट्स मैन पैदा करूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल तबके से था। लेकिन अब मुझे याद है कि वो अदारा इतनी काम कर रहा है कि 8-10 बच्चे तो मेरे एथलेटिक्स में दाखिल हो रहे हैं जिनसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाता। तो वहाँ दाखिल क्या, वहाँ एंट्री होना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्पोर्ट्स की बेस पर मैं स्पोर्ट्स का कोटा रखा हुआ है। वहाँ के प्रिंसिपल साहब मेरे शाहिद महमूद साहब, उनकी बहुत एफर्ट है, बहुत कोशिश है, अल्लाह ताला उनको सेहत। आपकी स्पोर्ट्स वाले बहुत सारी सरफराज हैं, 20-25 साल से आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, आपकी वॉलंटियरली आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। और एक हमें ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, उसकी ज़वाल की क्या वजह है? एक वक्त था पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तोती बोलता का हॉकी की वजह से, आज वही हॉकी वो कहीं नजर भी नहीं आती, वो किसी इंटरनेशनल तो छोड़े कई खेलों में भी नजर नहीं आती। सर सबसे बड़ी वजह है कि हॉकी खेल कौमी खेल था, एक चीज को खाए जाएंगे खाए जाएंगे खाए जाएंगे, आखिर वो घर भी खत्म हो जाएगा। इसमें स्पोर्ट्स में ऐसे राज छुपे हैं कि जो आप मुख्तलिफ तकरीबात देखते हैं सरकारी भी, वो स्पोर्ट्स का फंड ही होता है। वो इसमें ये स्पोर्ट्स है, एटम कराई, रस्सा कशी करा दी, दौड़ लगा दी, तो काम कोई और होता है। लेकिन स्पोर्ट्स हॉकी की फैसलाबाद का हॉकी स्टेडियम 2 साल से उसकी ट्रफ खाड़ी हुई है, लेकिन उस पर कोई बंदा नहीं, मिनिस्टर भी आए, डीजी स्पोर्ट्स भी आए हैं, लेकिन वो जूं की तूं ट्रफ पड़ी हुई। ये हंगामी बुनियादों पर अगर यही चीजें यूरोप में होती तो एक दिन के अंदर अंदर ये ट्रफ लगनी थी। अगर देखें कि रात को कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आता है तो रात को सड़कें बन जाती हैं, तो क्या वजह है? जो एक मुआशरा स्पोर्ट्स की तरफ हम फिर चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो आवारागर्दी जाएं, चोर डाकू बने और नशे की आदत में बने, क्योंकि स्पोर्ट्स ग्राउंडें नहीं है। मैं यूरोप में मेरा तजर्बा है, वहां माएँ बच्चों को लेकर मिट्टी में जाती हैं, उनको खिलाती हैं कि इनकी फिजिकल फिटनेस ठीक हो। तो स्पोर्ट्स की तरफ जाना बहुत जरूरी है ताकि सोसाइटी बैलेंस हो, बच्चे जो हैं मनफी सरगर्मी के बजाय मुस्बत सरगर्मी तरफ आएं। और स्पोर्ट्स दुनिया भर में स्पोर्ट्स का बजट बहुत रखा जाता है, बहुत रियासतें जो स्पोर्ट्स के हवाले से काम करती हैं, जितना उनका बजट डेवलपमेंट होता है उससे ज़्यादा स्पोर्ट्स का होता है। बस किसी के पाकिस्तान में जो बजट स्पोर्ट्स का बहुत थोड़ा होता है, उस बजट में से भी करप्शन की नजर हो जाता है, कुछ करप्शन की नजर हो जाता है, कुछ बजट वो स्पोर्ट्स का दूसरी मददात में तकरीबात में इस्तेमाल हो जाता है। इस वाले से शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल में आए, आपने हमें बहुत सारा गाइड किया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए मजीद प्रोग्राम में आपको बुलाते रहें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।